Hello students, today we are going to learn class 11th maths NCERT exercise 3.3 question number 20 to 25. In previous classes we have discussed questions number 1 to 19. In this video we are going to learn question number 20 and see the solution of question number 20 to 25. Prove that sin x minus sin 3x upon sin square x minus cos square x equal to 2 sin x. You can clearly see after proving we want 2 sin x. If you see properly LHS, in numerator we have sin x minus sin 3x, and we all know the formula for sin A minus sin B. So I'm writing formula for you. You all know that sin of A minus sin B is equals to 2 cos bracket A plus B upon 2 into sin A minus B by 2. This formula you have already learned. Sin A minus sin B equals to this one. Okay, if you see denominator we have sin square x minus cos square x. You all know that this is a formula for cos 2x. This is the formula for cos 2x. Now take LHS first of all. First of all, take LHS. LHS is equal to sin x minus sin 3x upon sin square x minus cos square x. Now in LHS, first of all use this formula, 2 cos a plus b upon 2 into sin a minus b upon 2. So here in place of a we have x, in place of b we have 3x. Using this formula you will get 2 cos bracket x plus 3x upon 2, which is a plus b upon 2, into sin x minus 3x upon 2 bracket upon denominator we have sin square x minus cos square x. You all know that cos 2x is equal to sin square x, cos square x minus sin square x. cos 2x का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, cos square x minus sin square x होता है. If you apply this formula, here we'll get minus cos 2x, बिकॉज वी हैव साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. तो साइन का साइन प्लस है, या अगर हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड को, तो माइनस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स. अब डिनोमिनेटर ध्यान से देखिए क्या है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 2x. इफ यू सॉल्व फर्दर यू विल गेट 2 cos x plus 3x upon 2 4x upon 2 which is 2x, x minus 3x minus 2x upon 2 which will be sine of minus x. You all know that sine of minus x is minus. Denominator you keep as it is. Sine of minus x will be minus, and here 2 cos x sin x, which is 2 sin x cos x. You all know that wait a minute. You all know that 2 sin x cos x, cos 2x we have here, we have no cos 2x क्या होता है. अब देखेंगे cos 2x और cos 2 नीचे है, कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, नीचे नीचे ऊपर नीचे देखिए सेम है, कैंसिल हो जाएगा. और डिनोमिनेटर में माइनस का साइन है और न्यूमरेटर माइनस साइन है, वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा. न्यूमरेटर में बचता है क्या है, न्यूमरेटर बचेगा आपका 2 इंटू साइन एक्स. ध्यान से देखिए माइनस साइन एक्स था इसलिए माइनस साइन यहाँ बाहर आया, cos 2x कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, सिर्फ 2 sin x विच इज इक्वल टू RHS. प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. आई होप सबको समझ में आ रहेगा. मैंने क्या किया, न्यूमरेटर में sin x माइनस 3x था, तो sin a माइनस sin b का फॉर्मूला यूज़ किया. उसके बाद सॉल्व किए तो हमें मिला 2 cos 2x इंटू साइन ऑफ माइनस एक्स. और साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, इसलिए माइनस साइन बाहर आया और cos 2x कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 2 sin x, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है. आपको समझ में आ रहेगा. प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट. सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 21. It is asking to prove that cot
cos 4x plus cos 3x plus cos 2x upon sin 4x plus sin 3x plus sin 2x equal to cot 3x. I have written LHS first of all to save your time. LHS is cos 4x plus cos, I have written LHS, you can see that. Then we have to prove it as cot 3x. अब cot 3x आना चाहिए, मतलब न्यूमरेटर में आपको मिलना चाहिए cos 3x और डिनोमिनेटर में आपको मिलना चाहिए sin 3x. नाउ अगर आप इसको देखते हैं cos 4x और cos 3x ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा cos 7x. अगर हम लोग cos a प्लस cos b का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जब एंगल्स ऐड करेंगे तो 7x/2 मिलेगा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड नहीं है. अगर मैं 4 और 2 को पेयर बनाता हूँ तो 4 + 2 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको 3x मिलेगा. इसलिए हम उसको अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन. हमको cot 3x लाना है, मतलब न्यूमरेटर में cos 3x आना चाहिए, डिनोमिनेटर में sin 3x आना चाहिए. वो इसीलिए मैं cos 4x और 2x को एक साथ लेता हूँ, और यहाँ पे भी 4x sin 4x और sin 2x को एक साथ लेता हूँ, बिकॉज डिनोमिनेटर में sin 3x चाहिए. तो हम क्या करते हैं, थोड़ा रीअरेंज करते हैं. cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x अपॉन sin 4x प्लस sin 2x प्लस sin 3x. अब ये पेयर लेते हैं और इसमें हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे cos a प्लस cos b का. फॉर योर कन्वीनियंट आई एम राइटिंग द फॉर्मूला. वी ऑल नो दैट cos a प्लस cos b इज इक्वल्स टू 2 cos a प्लस b बाई 2 अदर ब्रैकेट cos a माइनस b बाई 2. यह cos a प्लस b का फॉर्मूला है. एंड sin a प्लस b का फॉर्मूला भी मैं आपको यूज़ करना है हमें, इसलिए वो फॉर्मूला भी लिख देता हूँ. सिंस sin a प्लस sin b इज इक्वल्स टू, क्या होता है फॉर्मूला आपको सबको पता होगा, 2 sin a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस ऑफ a माइनस b बाई 2. ये होता है फॉर्मूला. अब हम इन दोनों फॉर्मूला को न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अप्लाई कर देंगे. न्यूमरेटर में cos a प्लस cos b वाला फॉर्मूला, डिनोमिनेटर में sin a प्लस sin b वाला फॉर्मूला. तो क्या होता है फॉर्मूला, ध्यान से देखिए. अप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये हो जाएगा टू cos a का जगह पे क्या है 4x, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2x, 4x प्लस 2x अपॉन 2, मेक अ ब्रिक ब्रैकेट सॉरी, इनटू cos a minus b, that is 4x minus 2x upon 2 whole upon sin of a plus b formula, 2 sin a plus b, again 4x plus 2x upon 2 into cos of 4x minus 2x upon 2. अब न्यूमरेटर में कुछ और बचा हुआ था प्लस cos 3x, उसको एज इट इज़ लिख लेते हैं. डिनोमिनेटर में क्या बचा था sin 3x, उसको एज इट इज़ लिख लेते हैं. हमने कुछ नहीं किया है, सिंपली cos a प्लस cos b एंड sin a प्लस sin b का फॉर्मूला यूज़ किया है. नाउ आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट 2 cos 4 प्लस 2 6 अपॉन 2 3x इंटू दिस विल बिकम व्हाट cos x, आई एम राइटिंग डायरेक्टली cos 2x अपॉन 2, 2x अपॉन 2 मतलब 2 कैंसिल हो गया, x बचेगा, प्लस cos 3x, इसको एज इट इज कॉपी करते हैं, अपॉन 2 sin 3x इंटू 2 sin 3x इंटू cos x प्लस sin 3x. दिस इज इंटू. ओके, नाउ अगर आप न्यूमरेटर को ध्यान से देखेंगे तो वी हैव cos 3x कॉमन, सो टेक दैट cos 3x आउट. क्या बचेगा ब्रैकेट में 2 cos x प्लस 1. डिनोमिनेटर में भी आप केयर करेंगे तो sin 3x इज कॉमन, सो टेक दैट sin 3x आउट, यू विल गेट sin 3x इन ब्रैकेट विल हैव 2 cos x प्लस 1. नाउ यू कैन सी 2 cos x प्लस 1, 2 cos x प्लस 1 कैंसिल आउट. व्हाट इज लेफ्ट, cos 3x अपॉन sin 3x is left, so that will become cot 3x, which is equal to RHS. That was our required proof.
I hope you all understood this question. Please pause the video and note it down. Now students, see question number 22. It is asked to prove cot x into cot 2x minus cot 2x into cot 3x minus cot 3x into cot x equal to 1. ये आपको प्रूव करना है. So I have written LHS first of all to save your time. Now see, if you see these two terms, cot 2x cot 3x minus cot 3x cot x, you can clearly see cot 3x is common in both. हम क्या करते हैं, cot x को कॉमन लेते हैं, इसको एज इट इज रखते हैं, cot x इंटू cot 2x माइनस आई एम टेकिंग cot 3x कॉमन. तो cot 3x अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, बचेगा आपका cot 2x प्लस cot x माइनस cot x 3x कॉमन लिया तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो आपको बचा cot 2x प्लस cot x. नाउ सी, सब cot x cot 2x में है, cot 2x cot x में है, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं cot 3x. cot 3x को हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cot x प्लस 2x, और 2x प्लस x बात सेम है. यहाँ भी देखो x है, यहाँ 2x है, यहाँ 2x है, यहाँ x है, तो हमने क्या किया, cot 3x को चेंज कर दिया x प्लस 2x में, रेस्ट कॉपी डाउन, cot 2x माइनस प्लस cot x. Here we have cot x into cot 2x. Now here we can apply formula that is cot of a plus b formula. Cot of a plus b, you all know that cot a plus b equals to क्या होता है, cot a into cot b minus 1 upon cot a plus cot b. cot a into cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b, ये होता है फॉर्मूला cot ऑफ a प्लस b का. यहाँ पे मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ, बाकी कहीं कोई ज़रूरत नहीं अप्लाई करने की, बिकॉज देखते हैं क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाएंगे. इसको आप आगे सॉल्व करते हैं, तो इसको एज इट इज रखेंगे, cot x इंटू cot 2x माइनस, यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, a की जगह पे क्या है, x है, b की जगह पे 2x है. दिस विल बिकम cot ऑफ I'll just put bracket here, cot of 2x into cot of x minus 1 upon cot x plus cot 2x. सब लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे एंगल ए एक्स था, मैंने बी 2x को पहले रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, सो नो प्रॉब्लम. इंटू cot 2x plus cot x. Okay, small bracket or bigger bracket, no problem. Now you can see clearly the denominator is same here. Denominator देखिए दोनों का सेम है, तो we can cancel them out like this. So what is left, just write down cot x into cot 2x minus in bracket we have cot 2x into cot x minus 1. If you open the bracket, this will get cancel out. Cot x into cot 2x minus cot x, I'm just shuffling here, cot x into cot 2x, एक ही बात है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, दिस माइनस एंड दिस माइनस बिकम प्लस 1. सो व्हाट यू गॉट द आंसर 1, which was our required proof, that is equal to RHS. Hence we have proved. I hope you all understood. Please pause this video and note it down. Now students, let's see question number 23, which is prove that tan 4x is equal to 4 tan x into 1 minus tan square x upon 1 minus 6 tan square x plus tan power 4x. So I've taken LHS first of all. You all know that in this question we are going to use formula of tan 2a twice thrice. Let's see first of all what is the formula of tan 2a. Tan 2a, you all know that tan 2a is equal to 2 tan a upon 1 minus tan square a. This is the formula of tan 2a. Tan 2a equals to क्या होता है, 2 tan a upon 1 minus tan square a. Now to use this formula tan 2a, we can write tan 4x like this, tan of 2 into 2x.
यहाँ पे a का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग 2x, so we can apply this formula easily. Now tan 2a will become 2 into tan of 2x, because in place of a we have 2x, so 2 tan x upon 1 minus tan square of 2x. Okay, I hope you all understood. Now further, if you clearly, if you see here, tan 2x we can apply a formula of tan 2x again, because in the RHS we don't have 2x. RHS में कहीं हमारे पास 2x नहीं है, हमें x ही लाना है, तो we can apply again formula of tan 2x here as well as here. If you apply formula here, so you'll get 2 bracket tan 2x, which is 2 tan x, because this time angle is x, upon 1 minus tan square x, this is only numerator, upon whole upon 1 minus tan square 2x है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 minus tan 2x का होल स्क्वायर, 1 minus tan 2x whole square, which will become again 2 tan x upon 1 minus tan square x whole square. मैंने क्या किया, ये tan square 2x को मैं लिखा tan 2x का होल स्क्वायर, देन अप्लाइड द फॉर्मूला ऑफ tan 2a अगेन. देखो न्यूमरेटर में लगाया हूँ और डिनोमिनेटर में वही फॉर्मूला दो बार यूज़ किए हैं. आफ्टर सॉल्विंग दिस यू कैन सी 2 into 2 you will get 4 tan square x, 4 tan x upon 1 minus tan square x. In denominator we have same thing, 1 minus स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, 4 tan square x upon 1 minus tan square x whole square. देन यू कैन सी प्रॉपरली क्लियरली, अगर आप ध्यान से देखेंगे डिनोमिनेटर को सॉल्व करने पे हमें क्या मिलता है. न्यूमरेटर वही रखते हैं 4 tan x अपॉन, ये विजिबल नहीं, थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन होल अपॉन, यू विल गेट, अगर इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x होल अपॉन, विल गेट 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर. सिर्फ सिंपली डिनोमिनेटर को मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है और कुछ नहीं किया. अगर आप ध्यान से देखेंगे न्यूमरेटर में हम और क्या कर सकते हैं, देखो ये 4, ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, ये वाला यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है. 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है, तो एक बार कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो कैसे होगा देखिए, अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलेगा, एक बार और स्टेप कर लेते हैं, 4 tan x अपॉन, इसको अगर एक्सपांड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 1 स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर माइनस 2 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x. मैंने यहाँ पे सिर्फ a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई किया है, 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर प्लस रहेगा, सॉरी यहाँ पे tan स्क्वायर x होल स्क्वायर, देन माइनस 2 tan स्क्वायर x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस दिस वन. इफ़ यू सॉल्व फर्दर यू विल गेट, अगर इसको और डिनोमिनेटर में आपका बचा हुआ है, एक बार ध्यान नहीं दिया, डिनोमिनेटर में आपका क्या बचा हुआ है, 1 माइनस tan स्क्वायर x, 1 टाइम बचा है, ठीक है. दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं. हाँ, अब देखिए यहाँ से हम इधर सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इसको आप ध्यान से देखिए, ये था 4 tan x है, ये डिनोमिनेटर जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो न्यूमरेटर क्या बनेगा, 4 tan x इन ब्रैकेट 1 माइनस tan स्क्वायर x होल अपॉन, यू विल गेट, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस 2 and 4, you will get 6 tan square x.
प्लस 10⁴x। अब RHS का कोई क्वेश्चन का RHS थोड़ा ध्यान देखिएगा। RHS में हमें वही चाहिए था 1 - 6 10² x प्लस 10⁴x, और न्यूमरेटर में 4 10x इंटू 1 - 10²x। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। ये हो गया हमारा RHS। आई रिपीट दिस क्वेश्चन अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टेकन LHS, देन 4x था तो उसको 2 × 2x लिख सकते हैं। देन वी कैन अप्लाई फॉर्मूला फॉर tan 2a, इसको a समझ लीजिए। tan 2a का फॉर्मूला अप्लाई किया, क्या होता है 2 tan a अपॉन 1 - tan²a। सो 2 × this 2 I have taken separate, then applied formula for 2 tan, सॉरी यहाँ पे अप्लाई किया 2 tan 2x अपॉन 1 - tan² 2x बिकॉज एंगल वॉज 2x। नाउ फिर से इसमें 2x का फॉर्मूला लग सकता है, जो मैंने यहाँ पे फिर से अप्लाई किया tan 2x का फॉर्मूला, जो कि होता है 2 tan a अपॉन 1 - tan²a। तो 2 tan x अपॉन 1 - tan²x, डिनोमिनेटर में वही काम किया, tan² का इसको कर लिया tan 2x का होल स्क्वायर, फिर से tan 2x का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तो मिलेगा 2 tan x अपॉन 1 - tan²x। फिर इसको 2 × 2 4 हो गया tan x अपॉन 1 - tan²x, ऐसे एज इट इज़ है। डिनोमिनेटर में आप देखेंगे 1 - इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4 tan² x अपॉन 1 - tan² का होल स्क्वायर। फिर सॉल्व किया तो क्या मिला 4 tan x अपॉन 1 - tan²x, ऐसे ही था। ये एक बार कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज़ किया तो क्या मिलता है a² प्लस 2ab सॉरी -2ab प्लस b²। ठीक है, तो यहाँ पे 1² 1 हो गया, tan² x का हो जाएगा 10⁴x। ठीक है, -2 tan² x -4 tan²x, ये हो जाएगा -6 tan²x। और न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर जाके यहाँ मल्टीप्लाई होता है, आप सब जानते हो, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 4 tan x इंटू 1 - tan² अपॉन दिस दैट इज इक्वल टू RHS। ये हमारा प्रूफ था। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। ठीक है, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, थोड़ा सा इधर सफल कर देते हैं, दिखाई दे रहा है पूरा? हाँ, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। ये 1 - tan² नहीं दिखाई दे रहा है, अब सही है। ठीक है, प्लीज़ पॉज दिस वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट सी क्वेश्चन नंबर 24। cos 4x equal to 1 - sin² x into cos² x. We have to prove that. So first of all, take LHS as we do in every question. LHS equal to we have cos 4x. आपको प्रूव करके लाना क्या है 1 - sin² x into cos² x. sin स्क्वायर एंड cos स्क्वायर लाके आना है। इसको हम क्या कर सकते हैं, cos 4x को वी कैन राइट इट एज cos of 2 into 2x. Now you can apply, if you consider 2x as a, तो we can apply formula for cos 2a. cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, you all know that, क्या फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin square a. This is the formula for cos 2a, 1 - 2 sin square a. ठीक है, देन we'll get what, ध्यान से देखिएगा, ये 2a की जगह पे क्या आएगा 2x, तो ये फॉर्मूला जो अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर 2x, बिकॉज a क्या है आपका 2x। इसको थोड़ा सा और डिटेल में सॉल्व करके क्या आ जाएगा 1 - 2 sin 2x होल स्क्वायर, बिकॉज यू ऑल नो दैट sin square x is equal to sin x square. Now if you solve here you can see we want in right hand side क्या चाहिए हमको sin square x into cos square x चाहिए, in on the right side we want sin square x into cos square x, and we all know that sin 2x can be written as sin 2x can be written as sin x 2 sin x into cos x. Okay, sin 2x क्या लिखा जा सकता है 2 sin x into cos x, so you will get sin square x and cos square x because square sign is there. थोड़ा प्रीवियसली आपको सोचना पड़ता है, सो दिस विल बिकम 1 - 2 इन ब्रैकेट 2 sin x into cos x. दिस इज अ फॉर्मूला फॉर sin 2x. ठीक है, और होल स्क्वायर है ऑलरेडी, इसको एक्सपांड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 1 - 2 2 का स्क्वायर 4 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x. तो यहाँ पे प्रूफ में सॉरी गलती लिखा हूँ, क्वेश्चन 8 sin स्क्वायर x होना चाहिए था, 4 इंटू साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स, खाली सिंपली स्क्वायर कर दिया है। तो इफ़ यू सॉल्व फॉर द यू विल गेट 1 - 2 इंटू 4 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो आप देखिए आज आपको RHS मिल गया है, सो दैट इज इक्वल टू
RHS. Hence proved. Now let's see last question of this exercise, which is 25th. It is asking to prove cos 6x equal to 32 cos power 6x minus 48 cos power 4x plus 18 cos square x minus 1. आप देखेंगे cos 6x से ये इतना प्रूव करना है, तो cos 6x का कोई फॉर्मूला हमारे पास है नहीं, बट वी नो दैट एक फॉर्मूला हम जानते हैं cos 3x का. cos 3x की जगह पे मैं a ले लेता हूँ. cos 3a का फॉर्मूला जानते हैं आप लोग. cos 3a क्या होता है? 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ये फॉर्मूला होता है. इस फॉर्मूला को हम यूज़ कर सकते हैं. कैसे यूज़ करेंगे? 6x की जगह पे हम 2 × 3x लिख सकते हैं. तो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, 4x था तो हमने 2 × 2x कर दिया था. उसी तरह यहाँ पे 6x है तो इसको हम लिख सकते हैं cos 6x. LHS लेने के बाद, मैं LHS नहीं लिखा हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ cos ऑफ 3 × 2x कर दें, बिकॉज मैं 3x का फॉर्मूला यूज़ करना चाहता हूँ. तो 3 × 2x, 3a का फॉर्मूला यूज़ करना चाहता हूँ. सो cos 3 × 2x. देन अप्लाई दिस फॉर्मूला 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a. 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, अगर वो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो फॉर्मूला क्या कहता है? 4 cos क्यूब a, तो 4 cos क्यूब 2x, a की जगह पे 2x आएगा, माइनस 3 cos 2x, a की जगह पे 2x आएगा. ठीक है. उसके बाद अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे cos क्यूब 2x है, तो हम यहाँ पर, क्योंकि सब देखो राइट हैंड साइड में cos 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 ही चाहिए, यहाँ पे हम cos 2x का cos वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं. cos 2x का 3 फॉर्मूला होता है. 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 2 cos स्क्वायर एक्स ए माइनस 1, और होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स. बट हमें सब जगह cos cos चाहिए, तो हम क्या करेंगे? साइन को अवॉइड करेंगे. वी विल यूज़ cos 2x का फॉर्मूला, विच इज़ ये वाला यूज़ करेंगे. cos 2x इक्वल टू क्या होता है? 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे. सिंस यहाँ पे क्यूब है तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 4 cos 2x का होल क्यूब. ठीक है. देन वी कैन अप्लाई माइनस 3 cos 2x एज इट इज रख देते हैं. ठीक. यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा? 4 cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट रखते हैं, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्यूब माइनस 3 इंटू, अगेन यहाँ पे भी cos 2x अप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा? 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1. ठीक है. रीज़न मैं यहाँ लिख दिया हूँ, आप चाहे तो यहाँ साइड में लिख सकते हैं. देन इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सिंप्लीफाई करना मतलब आप जानते ही हो, यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब है, तो a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला लगा देंगे. a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी. ठीक है. तो वो जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? देखिए वो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा 4 2 cos स्क्वायर एक्स होल क्यूब माइनस 1 क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब, ओके, माइनस 3 इन ब्रैकेट ए बी विच इज़ 2 cos स्क्वायर एक्स, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर. ठीक है. वही मतलब दो तरह से फॉर्मूला ना, एक a माइनस बी होल क्यूब का, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी होता है, a माइनस बी होता है, या फिर a क्यूब माइनस बी क्यूब 3a स्क्वायर इंटू बी 1 है तो इंटू 1 करेंगे तो वही बचेगा, प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3a मतलब 2 cos स्क्वायर एक्स इंटू बी 1 है तो कोई मतलब नहीं. ठीक है. यहाँ पे मैंने ध्यान से फिर से एक बार देखिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, a का मान ये है, इंटू बी मतलब 1, फिर 3ab स्क्वायर होता है तो 1 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसको रख देते हैं. 3 को अंदर छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 2 6 हो जाएगा 6 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3. ठीक है. सॉरी माइनस रहेगा बिकॉज माइनस साइन है यहाँ पे तो माइनस आएगा. ओके.
फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा, थोड़ा सा दिख रहा है आपको, हाँ ठीक, ऊपर कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4 इन ब्रैकेट 2 क्यूब, यू ऑल नो दैट 8 cos पावर 6x -1 -12 cos पावर 4x प्लस 6 cos स्क्वायर x ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, -6 cos स्क्वायर x प्लस 3। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। सीधा एक्सपांड सॉल्व कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब इस 4 को अंदर हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 32 cos पावर 6x, देखिए रिक्वायर्ड था वो, एंड 4 इंटू ये 4 इंटू 12 को पहले लिख लेते जैसे हमको रिक्वायर्ड है, या तो पहले सॉल्व करते बाद में अरेंज कर लेंगे। -4 -48 cos पावर 4x प्लस 24 cos स्क्वायर x -6 cos स्क्वायर x प्लस 3, ठीक है। यहाँ पे 4 को सब में मल्टीप्लाई कर दिया। अब अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अरेंज कर लेते हैं। 32 cos पावर 6x चाहिए पहले, 48 हमारे पास है, उसके बाद 18 cos स्क्वायर x है, प्लस 24 cos स्क्वायर x माइनस 6 cos स्क्वायर x आपको मिल जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। तो उसको अरेंज करते हैं, तो ये जाएगा आपका 32 cos पावर 6x माइनस 48 cos पावर 4x प्लस 18 कैसे मिला, कोई बताएगा 18 कैसे मिला? कोई बताएगा 18 कैसे मिला? नहीं समझ में आया? वेट, देखिए 24 cos स्क्वायर एक्स माइनस 6 cos स्क्वायर एक्स किया तब आपको 18 मिला, 18 cos स्क्वायर एक्स, और लास्ट में हमें 1 चाहिए था, लास्ट में हमें -1 चाहिए, तो -1 -4 प्लस 3 ये हो जाएगा -1। एक बार फिर से देखिए, हमने क्या किया, cos 6 को लिखा cos 3 इंटू 2x, बाद में cos क्यूब x का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है, cos 3a का फॉर्मूला लगा दिया, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, तो ये हो जाएगा ये 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ठीक है। फिर से cos 2x का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किया, यहाँ भी cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई किया, फिर सिंप्लीफाई किया है, a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब 3a स्क्वायर b इंटू 3ab स्क्वायर, 1 था इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई, देन ये बाकी एज इट इज़ लिखा है। फिर 4 से पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, उसके बाद जो लाइक टर्म्स है उनको सॉल्व किया, जैसे ये और ये लाइक टर्म थे और ये लाइक टर्म को सॉल्व किया और अपने आरएचएस के हिसाब से अरेंज कर दिया। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बाय दिस वे वी आर कंप्लीटेड एक्सरसाइज 3.3 ऑफ class 11th maths trigonometry. Next video we will start with new chapter. Thank you for watching this video.